हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. Yeah, I mean, I'm quite excited for this one. Yes, sir. Obviously, we are about a month away from the T20 World Cup. हाँ जी, Yeah, I think Feb 7th को start हो रहा है. ऐसा ही है. आज Jan 5th है. Yes, sir. Yeah. So 10:30 AM Pakistan versus Netherlands. The first game. We'll be live for that. 10:30 बजे उठना पड़ेगा तुम्हें. I mean 9 बजे उठना पड़ेगा तुम्हें. तुम ही उठाओगे मुझे. मैं उस नहीं दिन. उठा रहा. तुम खूब अलार्म लगाओगे. Khair, what we intend to do on this show is that Saad and I will pick our own squads of 15 along with 3 reserves. 18. Yeah. And then we will obviously pick what we think Pakistan will pick. Yes. Yeah. So basically कि पाकिस्तान ने by the way ICC को सबमिट करवा दी हुई है. हाँ. Preliminary squad. Yes. 31st Jan तक है चांस चेंज करने का. So you better believe it कि changes आएंगी उसके अंदर. Absolutely. I don't think they're going to release the squad. हाँ, but they might. You never नहीं, know. I've heard कि after the Sri Lanka series they will. Okay. I mean, we'll be seated for that. Yeah. Also, customary अपनी मैं grievance वो share कर दूं कि it makes absolute zero sense to have squads of 15 in ICC events. हाँ 18 की रख दो, क्या चला जाएगा आपका? यार इस तरह कर दो ना, जिसने 3 और लेके जाने अपने एक्सपेंस पे ले है. Exactly. नहीं, और वैसे भी यार, you know, I feel like 15 is too small a contingent is. because essentially you have 4 backups. So FIFA वर्ल्ड कप में अगर 23 बंदों का स्क्वाड होता है तो इसमें 18 का क्यों नहीं हो सकता? 3 तो कीपर होते हैं उसके हाँ. अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे भी आई फील कि थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए आईसीसी को रूल्स को, एंड स्क्वाड्स ऑफ 18 शुड बी अलाउड. It'll be more interesting. You'll have more options coming off the bench. Absolutely. And combinations आप बेहतर कर सकते हो. 18 में तो कोई मसला नहीं है. 15 के अंदर तो यार someone will inevitably miss out. ये मसला है. एंड फिर इंजरी होगी तो फिर रिप्लेसमेंट तो लानी है, तो फिर फायदा 18 बंदों को रख दो. You might as well have 7 backups instead of 4 is the argument. ठीक है. खैर, जैसे कि तुम मुझे बता रहे थे कि प्रिलिमिनरी स्क्वाड तो भेज दिया आईसीसी को. Yes. We told you guys कि पक्की खबर है that the selectors select 20 cricketers and then Mike Hesson is the one who probably alongside Salman Ali Agha. Probably. I don't know कितना वो कंसल्ट करता है आगा को, ठीक है, बट कजन सैल की भी कुछ ना कुछ से तो होगी. Hesson will be picking his final 15, so it's going to be his team, which is good. I'm for that. Ultimately, Johnsy भी squad select होती है. जॉन सीना. John Cena वाली squad भी अगर select हो जाए तो वो ठीक है. सारे Glenn Phillips. I'd play that team. Give me one Glenn Phillips and 16 pieces of wood and I will win the T20 World Cup. तुमने extra pieces of wood क्यों लिए? 18 का स्क्वाड नहीं कर रहे थे हम. 17 बनेंगे. 17 pieces of wood. Yeah. खैर, I'm happy that Hesson has that kind of power and autonomy because ultimately यार उसने strategy जो है वो मैनेज करनी है. स्ट्रेटजियां. Yes, ठीक है. एंड इट्स गुड दैट योर कोच इज एम्पावर्ड, सो इवन इफ ही पिक्स द रॉन्ग 15, आई एम हैप्पी दैट ही गेट्स टू पिक द 15. या एनीवे. अच्छा खैर, एक नाम तो हम पहले ही डाल लेते हैं ना बिफोर वी मूव ऑन टू द रॉक पेपर सिजर्स स्टफ. सलमान अली आगा कैप्टन, उसको तो डाल ही लो. डाल रहे हैं हम. डालना पड़ेगा पैराम. अब चेंज तो हो नहीं सकता ब्रो. इट्स अ बिट टू लेट फॉर दैट, बट मैं दिल से नहीं डाल रहा है नाम यार. मैं कौन सा डाल रहा हूँ, लेकिन डालना तो पड़ेगा ही ना. ये तो फिर स्टूपिडिटी हो जाएगी हमारे पार्ट पे. कजन सैल जो है हमारे आगा जी, कप्तान सलमान अली आगा, he is one of the first few names on the team sheet in ODI cricket and Test cricket. His stocks have continued to rise in the longer formats. He's the first name on the team sheet in T20 cricket as well, apparently. डालना पड़ गया. He's got a very substandard record. In fact, it's not even good enough for a substandard is. It's too light a word. It's too light a word. ज़्यादा मैं बोल गया हूँ यहाँ पे. He has a, what would be the word? Below par. Very below par. Yeah. Extremely below par. His overall T20 record is bad. He's had some phases in between, like, in the PSL, sometimes he's done Islamabad well. United के लिए उसने 2 seasons ago. When he was good. 2 seasons या 1 season ago? As in, इससे पिछले वाला. हाँ. Then, of course, in New Zealand, he did well. And in that home series versus Bangladesh, he did well. That is it. That's all we're looking at. Since that start of that tour to Bangladesh, the T20I tour, till now, he's basically done nothing. He's scored like 360 odd runs in उतनी तकरीबन बॉलिंग, बल्कि strike rate 100 से ऊपर. 100 से ऊपर हो गया था. Yeah, and average in teens. Yeah, he's averaging in the teens as well. So I don't understand his role either. Yeah. लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो सही ना. Is he someone who can bash spin in the middle overs? Is he supposed to come in the power play? Is he a crisis batter? Yeah, I know. I agree with those points. I have nothing on that. One thing I'd like to say is support तो फिर करना ही पड़ेगा. Support करना पड़ेगा. Look, just like we always mention how
Hessen का शादाब बंदा है, he's his guy and he's not going to desert Shadab Khan. So सलमान अली He's not going to desert Salman Ali Agha. अब तो नहीं, अब तो चांस ही नहीं है ना। या वो आपको एक फिर अजीब सा एक प्लेयर फिट करना पड़ेगा बीच में, क्योंकि जगह तो उसकी बन नहीं रही। बैलेंस नहीं बनता। He's done alright as captain, but he hasn't done so exceptionally well कि मैं कहूँ कैप्टनसी की बेसिस पे खेले। और पता है, truth be told, Saadi, I don't think in modern day cricket anyone can play solely on the basis of captaincy. ठीक है, कैप्टनसी वैसी मुझे थोड़ी overrated लगती है, मगर T20s में ज्यादा rated है। I don't think overrated, by the way, captaincy. नहीं, I think overrated in the sense a good captain can win you matches on his own as well. My issue is that sometimes you see a team lose and people just take their pitchforks out to the captain. मसला ये है ना कि जब ब्लेम भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं सिर्फ कैप्टनसी की बेसिस पे, तो फिर वो थोड़ा सा T20 क्रिकेट में स्पेशली सही फिर एनालिसिस नहीं होती ना। You could have the best captain in the world with, you know, the best approach as well. Your bowler shitting the bed, उसमें क्या करे? Your batter's not performing up to the mark, उसमें क्या कर सकता है फिर कैप्टन? Even if you get your tactics right, if your players don't perform, तो फिर कैप्टन तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये बात कर रहा था, वरना of course cricket is also one of those sports जिसके अंदर कैप्टन का सबसे ज्यादा रोल है। सबसे ज्यादा रोल। Yeah, like football में कैप्टन का क्या ही रोल है? वहाँ पे तो मैनेजर करता है सब। Leadership. Yeah, sure, marshalling your defense and all of that stuff. If defender हो कैप्टन मगर तो tactically तो a captain in cricket is very very important. It is. ठीक है, and I don't know man, like I said, grievances मेरी कप्तानी भी ज्यादा नहीं है, but as a cricketer in T20 cricket, I don't think he's up to the mark. He isn't cut out for this format. I hope he proves me wrong. Really do, because I like the guy. I love Salman Ali. मुझे cousin Sal पसंद है बड़े. He's a very happy, chirpy guy. And I think जिस तरह उसने अपनी गेम ODI क्रिकेट में ट्रांसफॉर्म की है, I've been very impressed. टेस्ट क्रिकेट में तो आया था जब I was like चलो bits and parts में कुछ कर लेगा, लेकिन he's exceeded our expectations over there as well, more than 100%. Yeah, I mean टेस्ट क्रिकेट में तो पहले exceed कर गया था. The ODI bit was fun. हाँ, और अच्छा कर रहा है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन T20 क्रिकेट में है क्वेश्चन मार्क्स यार, हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। Many times he will go at under run a ball, and then वो पावर गेम या तो डर कर खेल रहा है या लैग करता है, क्योंकि I feel like he can hit. और फिर उसका बैटिंग पोजीशन का भी इशू है ना, जब नहीं आना होता आ जाता है, जब आना होता है तब आके कुछ करता नहीं है, ये मसला है। कभी कभार पावर प्ले में आ जाएगा, फिर कभी कभार हिटर्स के टाइम पे आ जाएगा। उसको खुद शायद समझ नहीं आती। He should probably be a fail safe batter at this point. बाकी ना चले तो चलो कजन साहिल पड़ा हुआ है, आके बचा लेगा। He wouldn't have made my team, but अब डालना पड़ेगा। Yeah. And then of course there is that entire angle कि अब आप stable रहो, volatility से दूर रहो, you back a guy, but honestly, like, you need to perform in order to hold your spot. Yes. And he hasn't quite done that. And plus, खैर वो काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। Form तो काफी कम लोगों की लगी हुई है, let's be real, across the board. But also, yeah, we know that Mike Hessen loves multifaceted cricketers. It's not like Salman Ali Agha is doing with the ball what Saim Ayub is. ये भी तो मसला आ जाता है, क्योंकि Saim Ayub is also shitting the bed with the bat. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। Batting तो उससे भी नहीं हो रही, but कम से कम Saim Ayub बहुत valuable हो जाता है when it comes to his overs. Yeah. Salman Ali Agha doesn't quite do that either. But anyway, he is, I suppose, the first name, and begrudgingly डाल रहा हूँ, but full support है. फुल सपोर्ट। या चाहता हूँ कि मुझे प्रूव रॉन्ग करे। मैं आगे यही बात कर रहा हूँ कि देखो यार, बाकी दोनों फॉर्मेट्स में अपस्किल करके दिखाया था, इसमें भी कर दिया फाइन। ये लो बहराम और साथ सही किए, बैक हैसन ने बहराम और साथ गलत है। आई रियली होप दैट्स द केस एट द एंड ऑफ द डे, बट दिस इज समथिंग दैट आई लूज स्लीप ओवर कि कजन साहिल कप्तान है और उसने खेलना ही खेलना है और जगह नहीं समझ आ रही, उसकी रोल भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, 14 मोर गाइज टू गो प्लस 3 रिजर्व्स। अब मुझे लगता है हम अपना जो हमारा ओरिजिनल आइडिया था ना, कि हम पहले रॉक पेपर सिजर्स करेंगे, जिसकी पिक होगी वो पिक करेगा, और फिर उस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो ठीक है पिक या नहीं। रॉक पेपर सिजर्स शूट पे करें कि बस रॉक पेपर सिजर्स? अच्छा चलो, ऑलराइट, 1 2 3 गो। रॉक पेपर सिजर्स, रॉक पेपर सिजर्स। हाँ भाई, you want to go first? I want to go first. Saim Ayub. अच्छा, Saim Ayub gets going into my team. He's going to be in my team as well, तो मैंने उसका नाम रख दिया है. Again, someone who hasn't quite cut it with the bat. I don't think he should open in T20 cricket. I think first drop पे आना चाहिए। Yeah. Yes, उससे भी अगर डिले करना पड़े तो कर लो। Thing is कि Saim Ayub can still smash spin. Yeah. So I feel like delaying his entry point isn't the worst thing in the world. First drop makes sense. They did that, by the way, in the Asia Cup. I don't know why they reverted after. उसमें भी वैसे उसने कुछ किया तो नहीं, but thing is कि Saim Ayub with his carom ball,
he's really good with his bowling. Ultimately, Hassan gambles with 8 overs, and if those 8 overs are split into 3-4 people, then that's quite beneficial. I agree. Saim has done quite well with the ball. He's done quite well with the ball. He's really good in the field as well. Yes. Batting में ये है कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा, लेकिन आपको पता है जब चल जाता है तो फिर ठीक हो जाता है. We know that he is a dynamic batter, but we haven't quite seen it. He does struggle on slow pitches. That is a concern of mine. A lot. Big concern of mine. अभी भी BPL में खेल रहा था तो he scored 29 of 34. एक स्टेज पे 31 बॉल 21 थे. फिर छक्का मारा था इसने. So not at all impressed with his batting at the moment. लेकिन I cannot take him out of the team. Plus, people will say कि ODI cricket में भी तो open करता है. यार वहाँ पे he has a bit more time. He has a bit more time. थोड़ा time लेता है अपना और उसके बाद फिर he's great. Plus, in an ODI, if you are 60 to 70 runs after the first 10 overs, you've done really well. ठीक है? Especially if you're 70. यहाँ पे 6 overs में आप 50 भी नहीं करते. यही तो मसला चल रहा है यार. 60 is दूर की बात. यहाँ पे तो 50 के मसले पड़े हैं. Depending on the pitches as well, श्रीलंका में कैसी होती हैं वहाँ पे I don't think इतनी high scoring power plays भी होंगे. लेकिन then again power play ही सबसे ज़्यादा crucial हो जाता है. Absolutely. Even when the surface is bad, you need to cash in on the power play, right? So it's an interesting situation that Pakistan find themselves in, where Saim is a sure shot starter just because of his bowling, and that's odd. और पता है, I will give him this. I used to call him a high performing part timer. But he has actually advanced to batting all-rounder, right? Or bowling all-rounder or batting all-rounder? At this moment, bowling all-rounder, depending on the form. लेकिन साइम अयूब ने बोला है कि PSL की वजह से, by the way, कहता है मैं पहले भी bowling करता था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी में मैंने जो bowling कराई है ना, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा improvement हुई है. देखो कहीं ना कहीं से तो he has mastered the art of the carom ball, and he actually does really well with the carom ball, and matchup वाला मसला नहीं पड़ता ना. पता है, interestingly, अगर थोड़ी सी slowest surface हो ना, I'd be open to give him the new ball as well. I'm just really cautious with respect to opening the batting with him, because we know the numbers, man. कितनी दफा बता चुके, he's not averaging much in the first 2 overs of a T20I. So might as well slot him at 3. They won't do it. We know this already. But I mean, देखो, lefty लगाओ, he'll roll conventional off breaks. Righty लगाओ, carom ball करा लेगा. He's quite an asset with the ball, and so he fits the Hassan sort of philosophy very well. So ठीक है, Saim तुम्हारी first pick है. Saim Ayub lock हो गया. Two players हो गए. पाकिस्तान वाली स्क्वाड में भी डाल ही देता हूँ मैं, क्योंकि जाहिर है Saim ने वहाँ पे भी होना ही है. I'll go with Mohammad Nawaz. I'm surprised that you didn't go with him first. नहीं, मैं तो order के हिसाब से जा रहा था. I feel like Nawaz is the most integral cog in the Hassan machine. मैं उधर भी डाल रहा हूँ पाकिस्तान स्क्वाड में. उधर तो हो गई. और Saad and I are the first to admit that we were not particularly happy when he got picked. मैंने तो कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, और मैंने जब ये अच्छा करने लग गया तो अपॉलॉजी फॉर्म भी डाल दिया था. अब जो है ना, नवाज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए. अगर लास्ट ईयर उठा के देख लो, he was the highest wicket taker in T20 as if I'm not wrong. Yeah, something like that. He was exceptional with the bat as well. बीच में बहुत ज़्यादा crucial उसने innings खेली हैं, cameos खेले हैं. He's been clutch. He has been clutch. एशिया कप में वो वाली performances लेकिन नहीं आई थी. एक चीज़ जो है ना, which I fear, जो बड़ी टीमों के खिलाफ जो theory थी सरमत की, जो the bearded dragon जिसे हम कहते हैं, उसने बोला था कि बड़ी टीमों के खिलाफ उसे डर लगता है कि नवाज नहीं चलेगा. लेकिन खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन श्रीलंकाज एंड द बांग्लादेशेस ऑफ द वर्ल्ड, वेस्ट इंडीज, इस तरह की टीमों के, proven that though. He's really good. Again, he's only faced India amongst the other teams. South Africa वाली टीम भी जो आई थी, वो प्रॉपर टीम थोड़ी थी. उनकी T20 स्क्वाड तो सबसे वीकेस्ट थी. उन लोगों ने भी अजीब हरकत की है यार. No Stubbs, no Rickleton. Yeah, that's a conversation for a separate day. I think Stubbs को तो मैं डालता यार. Yeah, I think Mohammad Nawaz was fortunate because he was out of favor, and then Shadab Khan went for his surgery. जगह खुली एक, he slotted in, and he has literally been priceless for Pakistan. You cannot put a price on those performances with the bat, with the ball in the field. He's been three-dimensional. He is the perfect sort of cricketer. He is that mold of cricketer that Mike Hassan loves. Chief साहब. Yeah. और चीफ साहब से उम्मीद तो है, बट वही वाली बात है सादी की, हल्का सा डर लगता है. When the going gets tough, can चीफ साहब deliver? बस वही चाहिए. वो जो क्लचनेस है ना इसमें, और हारिस रऊफ में मुझे बड़े मसले हैं कि जब भी हल्का सा प्रेशर आता है ये क्रम्बल कर जाते हैं. एंड आई होप कि उससे रिकवर कर गया हो नवाज, और इस दफा ना करे क्रम्बल का कुकी खाए. वैसे तो खाया हुआ, लेकिन काफी अरसा हो गया नहीं खाया. चलो तुम्हें मैं क्रम्बल का एक अच्छा वाला खिलाता हूँ. बहुत मीठा होता है यार. हाँ, नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड. आई फील लाइक जरा ज्यादा ओवरलोड हो जाता है स्वीटनेस पे, बट the very standard one, the chocolate chip cookie, it's really good one. They don't pay us anything, by the way. ये वैसी बात है. You can. Yeah, Crumble, do you want to sponsor us? Yes, World Cup आ रहा है. Yeah, when Pakistan's campaign is crumbling, maybe we could enjoy some cookies.
अच्छा नवाज भी हो गया. Yeah, नवाज तो मतलब शोर शॉट स्टार्टर एंड गॉट टू रिस्पेक्ट द गाय मैन. Yeah. क्योंकि वाकई साथ में तो चलो थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था, किया मैंने भी था. वी वर बोथ इन दैट कैंप कि अराफात मिन्हास को ब्लड करो. बट चलो ही केम इन एंड ही बिकेम एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल एंड फॉर दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट ओवर हियर. 100%. Yeah. अच्छा उसके बाद मैं हेसन की फिलॉसफी के साथ ही जाता हूँ. ठीक है, थोड़ी सी बैटिंग डीप करनी है. तुम किधर जा रहे हो? पता नहीं, दो लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, वो दोनों सेम ही जा रहे हैं. लेकिन पहला वाला मैं यार सादी मुझे जरा पिक करने दो. कर ले. आजकल बड़े कुत्ते हुए हैं. आप कुत्ते हुए में भाई. राणा फहूम. हम सब बोले फहूम हूम 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 हूम, हम सब बोले फहूम हूम हूम हूम. हम Three सब matches. बोलेंगे. 3 matches, 11 wickets in BPL. Wow. Averaging less than 10. Economy less than 7. राणा जी. ये प्रिंस ऑफ फूल नगर जो है ना, बीपीएल तो इनकी जगह. नहीं ठीक है. बीपीएल का वो लेवल नहीं है. ये इसका एक लेवल ऊपर है. हाँ, मैं बता रहा BPL हूँ. is too weak a league for Rana Fahum, man. Just joking, by the way. कोई तप ना जाना इसके ऊपर. I know we've got a pretty big fan base in Bangladesh We're as just well. joking. We love Yeah. राणा जी. उसके इर्द गिर्द हम ये मजाक करते हैं यार. Rana ji is another person who is very, very essential to Hassan's kind of philosophy and I yeah. feel like ये भी start तो करते हैं. बिल्कुल 100% करते हैं. जी. तो आज इस फॉर्म में तो मैं उसे एज अ बॉलर खिला लूं यार. Rana ji, let's make no mistake, is kind of bits and pieces. But then again, recently though, Behram, he's been good. हाँ. Especially in the Asia Cup final. I didn't expect Rana ji to do what he was doing. Yeah, with the ball. With the ball. Yeah. आप नहीं expect करते ना? मैं हमेशा समझता था कि राणा जी is a better batter than he is a bowler. मैं हमेशा And समझता these days he's turning up with the ball. मैं हमेशा समझता था राणा जी जो है ना, वो आपको कहीं पे गैप फिल करना हो ना तो उसे बॉल दे दिया करें. He's doing much better than that. Plus, if we're going to get surfaces on the slower side in Sri Lanka, राणा जी वहां बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं जहां बॉल थोड़ा फंसता है. फंसता है ना. Yeah. राणा जी भी तो फंसाते हैं ना. राणा जी वैसे ही फंसा देते हैं I love यार. Rana मतलब Fahum, look, we're going to make a Rana Fahum poster as well. आएगा. या ये बाकी सारे भी खरीद लो वैसे तो. बट या राणा फॉर्म का पोस्टर आ रहा है एंड आई एम काइंड जेलस ऑफ साद कि ये ले गए. बट टीम में तो दोनों की आ गया. नहीं था ब्रो. Yeah, so it's funny how cousin Sal हमने बस जबरदस्ती पिक कर लिए यहाँ पे. उसके बाद हम लोग बिल्कुल हैसन वाले प्लेयर्स पिक कर रहे हैं. करना ही था. तो let me complete the quartet. Yes. Give me Shadab Khan. शैडी ने तो आना है ब्रो. I've said this quite a few times कि it doesn't matter whether he's in form or not. Pakistan doesn't have middle order batters and Shadab is someone who can smash spin in the middle overs. He is also an elite fielder and his bowling is coming back slowly. अभी 44 runs. I would still like to see a bit more, obviously, but according to Jared, who did some ass analysis on Shadab, ये कोई चौथा पॉडकास्ट है जिसमें ass analysis बता रहे हो. मिस ना हो जाना किसी से. Buttocks को उसने, butt cheeks को उसने analyze किया. And Jared, who was a wrist spinner himself, he told me how hips are really important for wrist spinners, and Shadab had lost his hips. उसकी hips झूठ बोलने लग गई थी. Yeah, his hips were lying, और वो shoulder से bowling करा रहा था. अब उसकी slightly ass alignment बेहतर हो गई है. You know, it's like 1.5 butt cheek in, maybe a bit more than that. 1.6. Yeah. Either way, I don't care if that's back or not because I look at Shadab as a batting all-rounder anyway. बस लोग नहीं देखते ना. मसला मुझे नहीं है. ठीक है, आपका ओपिनियन ऑब्वियसली वैलिड है, अगर क्योंकि है तो वो प्राइमरी, उसका रोल तो स्पिनर था. हाँ. उस पे नहीं परफॉर्म कर रहा. हम दोनों भी क्रिटिसाइज करते हैं कि शादाब खान की बॉलिंग इज नॉट अप टू द मार्क. And injuries have played a part as well. The groin in particular. हाँ, that खैर performances on the field not been good enough. Yeah. ठीक है with the ball. मुझे मसला पता है कि उस दिन एक कमेंट से हुआ था. मैं यूजुअली करता नहीं हूँ रिस्पॉन्ड, लेकिन वो कह रहा था कि आप कौन से प्रोफाइल की, क्रिक इन्फो की प्रोफाइल की बात कर रहे हो. नहीं यार, प्रो बढ़ जाओ इन बातों से. आपको अभी तक यही चीज समझ नहीं आई कि क्रिकेटर की प्रोफाइल क्या. शादाब खान is a wrist spinner or was a wrist spinner who could bat really well and field spectacularly. That's the role. Right now I'm looking at him as someone who can alleviate some of those ailments for Pakistan with the bat. With the bat, yes. क्योंकि बैटिंग में मसले ही मसले और बॉलिंग उसका एक प्लस पॉइंट है वैसे ही. लाइक it's not the reason why I'm selecting him. Same. ठीक है. अब देखो 8 ओवर्स अगर शेयर करने हैं ना आपके साइम अयूब, शादाब खान, राणा जी, और कौन है चौथा? नवाज. शादाब को बोल दिया ना. हाँ, 4 हो गए ना. हाँ, so 4 में अगर 8 ओवर्स शेयर करने, वो ठीक है. I'd pick these 4. Yeah, and you know, if you have to study Mike Hesson a bit as well. Look at his New Zealand teams that did well. He had so many of these multifaceted cricketers जिनसे ये overs निकालता था. Jimmy the Niche, Corey Anderson, Colin de Grandhomme, Nathan McCullum. ठीक है. Maybe throw in Mitch Santner. Grant Elliott. Mitch Santner तब शायद ना आया हो. Elliott था. Grant Elliott counts. Yes. ठीक है. So he's always been doing this. He will gamble with 8 overs, but if you're gambling with 8 overs and have 4 people
to kind of bowl them. And they're not bad. That's fine. they're not और bad. ये भी तो हो सकता है कि राणा जी किसी दिन कुत्ते हो जाएं, 4 के 4 देने पड़ जाएं. Usually है, हो जाता होता है ऐसा केस. और नवाज तो 3 से 4 कराएगा. हाँ. रह गए साइम और शदाब. I don't even care if Shadab Khan doesn't bowl. हाँ. Honestly, Pakistan has proven that they don't need his bowling as such. But they probably do need his batting. Again, profile solid है. Click करते कि नहीं, execute करते कि नहीं, we don't know. मसला ये है ना. साथ ने मुझे उस दिन ऑफ कैमरा एक बात की थी कि Behram, truth be told, a lot of Pakistan's T20 World Cup campaign hinges on the form of Shadab Khan. It does. Yeah. आप एग्री करो या ना करो, प्लेयर अच्छा लगता हो या ना लगता हो, अब मैं फिर से बोलूंगा उसका रोल देखो और फिर असेस करो. शदाब खान की जगह कोई और प्लेयर ले आओ उस तरह की मोल्ड का. ठीक है, बहुत ज्यादा हिंज करता है क्योंकि बैटिंग में वो आपको बचा सकता है, बॉलिंग में आपको बचा सकता है. फील्डर तो अभी भी लीड है. फील्डर तो काफी लीड तो है. ये शदाब मसला लोगों को शदाब खान के नाम से है ना, उस प्रोफाइल से नहीं होना चाहिए. मैं ये कह, और ऑब्वियसली अगर वो ड्रैग बैक्स करा रहा हो अपनी डिलीवरी या फुल टॉस से करा रहा हो तो हम क्रिटिसाइज ही करेंगे. आई एम नॉट हैप्पी विद हिज बॉलिंग फॉर्म. मैं यही कह रहा हूँ. लेकिन बट ही डिड टेक अ 4 for 24 इन द BBL. हाँ, लेकिन अभी 44 भी पड़े हैं उसे. ये भी तो देखो, आई एम नॉट श्योर और डेड सर्टेन वेदर ही इज अ फ्रंट लाइन बॉलर अगेन, बट एटलीस्ट आई नो कि बैटिंग के अंदर ये काम कर सकता है. ही इज डन इट बिफोर. एंड till the end of the 2022 T20 World Cup, he was probably Pakistan's most prized asset in the format. 21-22 T20 World Cup में MVP था वो पाकिस्तान का. 24 was horrible. 24 was pretty bad. 22 के बाद ना 23, 24 and 25 में तो खेला ही कम है. But he's not been up to the mark. 25 के अंदर he was still doing all right when he came back. लेकिन फिर obviously injury होगी. But अब ये भी तो देखो कि 23 and 24 those 2 years are write-offs for Pakistan in T20 cricket. They were really terrible. Write-offs for Pakistan cricket in general. In general ही था वो. सही कह रहे हो तुम. ना याद कराओ. काफी कुछ आ रहे हैं. टेस्ट में काफी आ रहे हैं. टेस्ट में आ रहे हैं. एशिया का वर्ल्ड कप, एशिया कप. अच्छा ठीक है भाई. तो नेक्स्ट प्लेयर पे आ जाए. डोंट केयर इफ ही गेट्स 4 overs or not. एक भी नहीं मिलता तो ठीक है. हाँ भाई, तुम्हारी बारी है. यार मैं कंफ्यूज हूँ. एक बॉलर तो मैं लेना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे उसकी फिटनेस का भी पता नहीं. उसको रोक दिया मैंने. ओपनर पे आ जाते हैं. ठीक है, आई थिंक ही इज बीन वेरी गुड. जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह का नहीं है, लेकिन साहिबजादा फरहान हैज़ टू गेट इनटू दिस टीम. जिस तरह की उसकी फॉर्म है अभी भी BPL में शुरू के 3 मैचेस ही वाज वेरी पुअर, लेकिन अभी उसने बड़ी अच्छी 150 मारी. अच्छा, मार दी है. चलो मुबारक हो यार. आई लाइक फरहान इन द सेंस दैट he does try, but the issue with Farhan is the dot ball percentage, strike rotation. बीच में हमने देखा था उसे उस पे काम करते हुए. And he's not in denial. He acknowledges कि उसकी ये weakness है. He's spoken about it. The only thing he's in denial of is picking Ahmed Shahzada as his favorite batter. And the only thing he's best at is smashing Jasprit Bumrah. I take that, bro. Weird sort of anomaly over there. Sam Constance and Saibzada Farhan are the 2 batters that have taken down Jasprit Bumrah. That's so weird. Throw Klaasen in there. Klaasen ने वैसे IPL में बहुत. Klaasen ने भी मारा था. उस तरह तो वो जो boy है, Smashutosh शर्मा क्या? आशुतोष शर्मा. Kings 11 पंजाब में जो था इससे पिछले सीजन. Kings 11 पंजाब कुछ नहीं होता. पंजाब Kings. PBKS. Wow. BSDK. Anyway, फरहान का बनता है यार, क्योंकि टॉप ऑर्डर में वैसे ही कम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. एंड फरहान एटलीस्ट स्कोर्ड सम रन्स एंड ही हैड अ वेरी प्रोलिफिक 2025. The issue remains, will he be able to rotate strike? क्योंकि छक्का तो आ जाता है, 7-4 डॉट बॉल्स आ जाती है. ये मसला है ना. अब ये ठीक कर ले तो बेस्ट सीन है. बट देखो उसने BPL में क्या किया था. बट बहुत पहले हम ये बात करते थे कि एक्सप्रेस पेस एंड द शॉर्ट बॉल इज काइंड ऑफ हिज क्रिप्टोनाइट. ही इज नॉट गोइंग टू गेट दैट ओवर हियर एनीवे. ठीक है, यहाँ पे तो बाउंस लो ही होना है. होपफुली. सिनोलीज का कुछ नहीं पता मुझे. सिनोलीज के अंदर अगर ऑकवर्ड बाउंस आ गया तो बस फिर काबले कस लो. फास्टन योर सीट बेल्ट्स बेबी. काबले कस लो ठीक नहीं बोला मैंने. पता नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ. अब तो हो गया. काबले कस लो ब्रो. इट्स अ थिंग नाउ. बस नेट नहीं चलता ना इस मुल्क. दाल माश खिलाडो. Saibzada Farhan is an interesting one because last year he was really good in terms of his run scoring. Yes. Not in terms of strike rate, which I feel he could be much better with. है उसमें ability है. मुझे मसला ही है. अगर एबिलिटी ना होती ना तो फिर मैं कहता कि यार मसला है, लेकिन एबिलिटी जब है ना तो मैं चांस दूंगा उसे. To quote Rambo, he's got this ability. He's got this great ability to smash the ball. Yes, but और पता he can muscle the ball as well. He doesn't need to time them. Muscle तो वो बस inner ring field को clear कर जाता है. खैर play and misses भी होती हैं. Plays and misses. So he was the highest run scorer for his team in the last match and overall in the game and had the best strike rate.
So 65 और 46 and 141 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन ओवरऑल किसी का उससे बेहतर स्ट्राइक रेट है ही नहीं. there are two other things with respect to Saibzada Farhan. In the PSL, we saw that he was smashing spin in the power play. Yeah. I really hope that he's able to manage that in Sri Lanka because power play capitalize करना है और अगर spinner आया तो खाओ फिर spinner को, ठीक है. और दूसरी चीज ये कि we'd often noticed how after crossing 50 he slows down. However, there was this one knock in this recently concluded tri series where he didn't do that. He just kept on smashing it. That's what you need to do, Saibzada Farhan. आपके लिए अच्छी चीज ये कि you've got your work cut out for you. It's very like straightforward what you need to do to become a better version of yourself. Start rotating strike जब dot balls accumulate ताकि ना हो, और ऊपर से यार don't slow down. There is no margin anymore in T20 cricket for slowing down. ठीक है, कैच अप नॉक को हम पहले ही गलत कहते थे. ये रिवर्स कैच अप नॉक जो है ना, the slow down knock, that's also not good. So I feel like if things go right for Saibzada Farhan in this T20 World Cup, Pakistan could have a good campaign. So तुम्हारी पिक ठीक है. आ जाओ फिर तुम्हारी पिक पे आ जाओ. मेरी पिक पे आ जाए. अच्छा, we're delaying that Seamer because वो तो हाँ, सीमर, ओपनर, कीपर, उन्हें थोड़ा डिले कर. सारा कुछ ही डिले कर दो फिर. या 6 लोग हुए हैं, मसले शुरू हो गए हमारी टीम के अंदर. अच्छा जी, इसका मतलब है कि फिर मुझे जाना पड़ेगा एक ऐसे प्लेयर के लिए जो हम दोनों को लगता है कि स्क्वाड में तो होना चाहिए. सलमान मिर्जा. Yes. I'll go for him. Yeah. It's a bit of a rogue pick because he hasn't played a lot of cricket in period. Like ये नहीं कि ये इसने पाकिस्तान के लिए ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, उसने वैसी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली. But he has this one very big weapon, his stock ball, which right-hander ko he pitches it on leg stump. The ball cuts away sharply and it takes top of off. And at that, I feel is a really tough delivery to play. If people haven't played him much before, they might struggle. पिटने को पिट भी सकता है, but I think he's done enough to warrant a spot in the team. 100%. जो उसकी वो एक डिलीवरी है जो बाहर निकलती है राइट हैंडर को, दैट्स वेरी डेडली. सलमान मिर्जा हैजंट डन मच रॉन्ग इन पाकिस्तान शर्ट. अभी आई नो बीपीएल में एक मैच में रन पड़ गए थे, लेकिन बाकी में ही इज बिन गुड, ही इज बिन डिसेंट. एंड आई फील वो इस वक्त जिस रिदम में है ना, पाकिस्तान नीड्स दैट. और पाकिस्तान नीड्स इज द रिदम डिवाइन. सीन ये कि डिपेंडिंग के सबसे बड़ा इशू जो है ना, इस वक्त शाहीन की इंजरी है ना, तो सलमान मिर्जा तो आएगा स्क्वाड में पक्का. इसलिए तो वो शाहीन वरना शुरू में ही आ गया होता यार, शायद साइम से पहले भी आ गया होता शायद. But because we don't know what the extent of his knee injury is, and we're all kind of breaking a sweat because of that, I feel Salman Mirza ko to hona chahiye. Look, I'm not saying he'll have a very, very good career for Pakistan, but on current form, you have to pick him. You have to because, if you use him properly, give him 3 overs in the power play, he can do really well. He doesn't go for very many runs. If he's going for runs, तो ना दो 3. And then he does strike fairly regularly in the power play as well. He does. एक ओवर बचाना है उसका बाद के लिए, वो भी डेथ में नहीं देना उसे. 14th 15th ओवर कर मिडिल में निकाल मुकाओ उसको. But वो खैर they have been using him that way. It's fine. Usage of Salman Mirza से मुझे मसला नहीं है. He's been doing good. He gets into the team 100%. But the one thing I do have an issue with is Mike Hesson thought that fielding में वैसे improve कर रहा था. I'll give him that. I know he's not an elite fielder, but he was improving. Yeah, Mike Hesson thought that he's a death over. Yeah, Mike Hesson was talking of Salman Mirza as someone who can bowl at the death. I don't think so. I don't think he's a death bowler. I feel like वो उसका weakest phase है. मैं तो दूँ ही मत उसको. मैं 14th 15th over दे दूँ. Yeah. So देखते हैं इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. I have faith that they'll do a good job, but I'm also quite positive he's going to the World Cup. ये pick हो रहा है. तुम्हारे पास आ गए. मैं वो प्लेयर पिक कर लेता हूँ क्योंकि स्पिनर की जरूरत है. तो मैं जरा रुक के बॉल करवाऊंगा. अच्छा, you've gone for him before the magician. उस्मान तारिक आ रहा है. हैरी पॉटर से पहले उस्मान तारिक आ रहा है ब्रो. उस्मान तारिक को नहीं पढ़ते. कोई बैंडाना शैंडाना लाओ यार. उस्मान तारिक आ रहा है. मैंने बॉय की वीडियो देखी है जिसमें वो डिसजॉइंटेड एल्बो दिखा रहा था. दोनों कोनियां हैं ना फिर. दो कोनियां ब्रो. वो झूठ नहीं बोलता. या नहीं यार, he's been cleared to bowl in international cricket as well. And look, उसके बॉडी में एक लिमिटेशन है. He's a freak kind of bowler and I feel like it's a good pick. He's probably going to make my squad as well. डाल ही देता हूँ मैं उसे. उस्मान तारिक ब्रो अभी डेजर्ट वाइपर्स के लिए टाइटल भी जीत गया टाइटल. And he was kind of the MVP when he came. हाँ, लास्ट मैच जो फाइनल हुआ है उसके अंदर भी उसने 2 विकेट्स लिए और बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है. उसको मारना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली इन श्रीलंका जहाँ पे फंसनी चाहिए गेंद. ब्रो उस्मान तारिक तो आ रहा है मेरी टीम. तो वो फिर फंसा सकता है ना. फंसा सकता है ब्रो. फंसा सकता है. फंसाएगा. Bizarro version of Bazid Khan as coined by the bro, I think he's the more sane version of Bazid Khan. Butta Fast Boys came up with that. I feel like he could be a bit of a trump card for Pakistan. He could be, bro. Yeah, it's tough to pick him out of the hand, and he is
He's not quite a wrist spinner. He's just something different. It's a fingers. Yeah, ये finger flickers में आता है. यूं करता है. और bro, 2 for 20 and 4 in a final. He's got a fair few tricks up his sleeve. Yeah. Also, he is someone who seems very mature. He's got a really, really smart head on his shoulders. उसका thought process बड़ा clear है. उसकी बातों से पता लगता है. He's an intelligent bloke and he's someone who hasn't had a traditional journey. ठीक है, वो बेचारा पता नहीं कहीं बाहर दुबई में था या कुछ कर रहा था. So, by the way, side note, did you listen to the Zaffy Goza interview? Zaffy Goza, bro. Zaffy Goza तो पूरा Brit बन गया, Brit बन गया, bro. पूरा का पूरा. Yeah. उसका तो accent अब पूरा वही अंग्रेजों वाला, इंग्लैंड वाला accent बन गया. अच्छा, so 2 for 20 in the final, 3 for 33 in the qualifier. Wonderful. 4 for 18 उससे पहला इसका पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे में था. हैट्रिक ली थी. ILT20 जीता, T10 जीता. I think CPL भी जीता. He's on a roll. Yeah, I mean, he's made himself really, or made it really difficult for the selectors to not pick him, or Mike Hesson to not pick him. I feel like, Uzi Tariq gets in for me as well. And देखते हैं अभी कैसा चलता है. But I feel like अगर तो चल गया, तो it could be quite violent. It could be, bro. Very violent. I love that. फिर वो I love Usman Tariq, जो उसका अपना एक वो स्टाइल है, एक्स है उसका, ये बाव जो करता है, love Usman Tariq, बैंडेने पहनता है, कमीने किस्म के बाल हैं, मजेदार किस्म के, क्या दाढ़ी है. Yeah. Such a proportionate face as well. और फिर उसकी आवाज, इस तरह करके. Usman Tariq, if you're watching this, we'd love to have you here. We'd love to, bro. क्रिकेट छोड़ो, आज पॉडकास्ट ज्वाइन करो हमारा. पूरी वो एल्बोज वाली बातें करते हैं. यार मैं एक जोक बता नहीं सकता आपको, मगर बड़ा फिट जोक था. Anyway, he's got long fingers as well, let's just say that. बस वहां तक ही रखते हैं इसे. आ जाओ नेक्स्ट पिक. अब मसले पड़ रहे हैं ना. दिल तो मेरा सूफी मैक कह रहा है, मेरा भी, मगर हम सबको पता कि अबरार ने जाना है, और अबरार बेचारे का बनता भी एक तरह से. तुम अपना स्क्वाड बताओ ना. ये कोई हम तो वो कर रहे हैं ना. What would you pick? I think Abrar has to get in. Yeah, because he's honestly not done too much wrong. Abrar का ये मसला है कि he's in that 1 to 28, 2 for 28 region. मुझे कभी कभार डर लग जाता है. Yeah, अब कभी कभार ना Abrar, especially when he's bowling to left-handers, it's really scary because then he's going to start feeding their legs and he opens up an arc for them to wildly slog. Abhishek Sharma took him down this way. वो एक चीज जो है मुझे भी घबराती है, but ultimately he's also tough to pick. ये भी finger flicker है. अब्रार का हमेशा से डर यही रहा है कि he might be found out someday, but I feel like they kind of robbed him of opportunities in the past. एक इसका वर्ल्ड कप तो बनता है. Do you think दोनों की जगह है? Depending on the surface. नहीं, उस्मान तारिक तो मेरे लिए खेलेगा. अबरार और सुफियान दोनों की जगह है स्क्वाड में. लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे जब वक्त आएगा डिसाइड करने का. ठीक है, क्योंकि सूफी मैक, इट विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस इफ दे डोंट पिक हिम, बट वी ऑलरेडी हैव गॉट द राइटिंग ऑन द वॉल दैट दे आरंट गोइंग टू पिक हिम. वो राइजिंग स्टार्स खेल रहा था. तुम्हारे में अबरार अहमद लिख रहा हूँ, अपने में सूफी मैक लिख रहा हूँ. अपने में मैं स्लैश मार रहा हूँ. अभी मैं बाद में देखूंगा अगर सूफी मैक की जगह है. Our sentiments or feelings towards Sufi Mac are the exact same. We both love him. I know. लेकिन अभी मैं स्क्वाड का कॉम्पोजिशन देख के ना स्लैश लिख रहा हूँ कि शायद दोनों भी आ सकते हैं. Abrar on a good day is very accurate. On a bad day he can really shit the bed. But then Sufi Mac is young. ठीक है. Abrar is more experienced. Abrar has kind of earned this, whereas Sufi Mac didn't do anything wrong to get axed. ठीक है, and he's someone जिसका skill set तो यार I ball over it. Like I am in complete awe. Left arm wrist spinners वैसे ही rare breed होते हैं, rare commodity. Then he's good with his accuracy. He balls with a flatter trajectory. थोड़ी तेज bowling कराता है. And then of course killer wrong one. He's got pretty good accuracy for a left arm wrist spinner. But he's good. Somewhere down the line he fell out of favor. But also because Pakistan जो जिनके पास spinner ही नहीं थे, they all of a sudden got spoiled for choice. ये मसला हो गया ना. आज़म महमूद. अच्छा, आज़म महमूद क्यों बोला तुमने? उसने टेस्ट में बोला था ना. वो अच्छा. वो तो खैर वहाँ पे तो नोमी पाइन और साजिद उसके बाद ही आए थे. तुम्हारी बारी है भाई. यार I don't think you'll pick him in the squad, but I will 100%. Wasim Junior. I'll have Waz Junior in the squad 100%. Bowl एक तो death over. I'd pick him ahead of the other one. अच्छा, you're not going for Rauf. वो देखेंगे. अभी 18 बंदे सिलेक्ट करने, शायद 19th पे भी आ सकते हैं राउफ. बहुत तुम वैसे तब गए हो भाई राउफ. मैं बहुत ज्यादा तब गया. वैस जूनियर मेरी टीम में हमेशा आता. ठीक है ना. Everyone knows how much I adore him. I think he's brilliant at the death. They don't use him properly. He's got a wicked arm. ठीक है ना. वो अपनी थ्रो से ही एक आधी विकेट ले लेता है. He's got a tracer bullet arm.
बुलेट आर्म है ब्रो. रवि भाई को कोट कर लेते हैं. I mean, you do not take on his arm by any means, and he showed you how much of a value or how much value he can provide in the field very recently in the Tri-Series. They haven't played him enough. I think he deserves these 3 games. I think in their heads, at least in Mike Hesson's head, it's a toss-up between Vaz Jr. and Haris Rauf. फिलहाल मैं भी लिख देता हूँ उसका नाम. अगर उनका टॉस अप है ना, तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि हारिस रऊफ उधर लिख दो. He's going. चलो पाकिस्तान वाले में लिख देना यार, देख लेंगे ना. मैं बता रहा हूँ, आने दो ना. तो स्लैश तो डालो ना. स्लैश डाल, ये ले. वो पिक करेंगे हारिस रऊफ को. They're not gonna pick Vaz Jr. ये मेरा स्क्वाड है, मैं तो Vaz Jr. को मुझे भी लगता है कि वो हारिस के साथ जाएंगे. खैर मैं भी देखना चाहूंगा कि कितनी बैकअप्स की जगह रह जाती है, because we're pretty close to making a starting 11 over here as well. We just need some top order battles. Starting 11 तो नहीं बन रही अभी. वो ही ना, वो 2 ऐसे लोग हैं टीम के अंदर जिसकी हमें समझ नहीं आ रही किसको ड्रॉप करना चाहिए. And it's a tough one, but I am just going to go in a different direction altogether, man. यार फिलहाल can't we just pick Shaheen? शाहीन फिट हो तो मेरी टीम में तो फर्स्ट नेम. लिख लो शाहीन. लिख लो ना बस शाहीन. And you know what? If he's not fit though. अब rumor mill has it that the injury is not so serious, but we never saw the MRI scans and we don't know what the results were. तो हमें नहीं पता कि कितनी serious है शाहीन की injury. When it comes to the knee, we are all very scared. मसला जैसे कि मैंने कहा था, और कोई पुर्जा होता बॉडी का तो उतना शायद मैं डरता मत. ओ पेपर ही फेंक दिए अपने साथ. Shaheen Shah Afridi has lost that extra yard of pace, no doubt about it, but he's been very intelligent. He's been smarter. He's impressed Hesson to the point कि उसने ओडिया का कप्तान ही बना दिया. Workload management would remain an issue, but if you look at his skill set in T20s now, he doesn't go for the magic ball all too often. उतना आगे नहीं पिच करता बार-बार. पहली 1-2 बॉलें कर लो तो देख लो किस तरह की पिच बिहेव. पहला ओवर कर लो थोड़ा सा. उसके बाद he drags his length back. He has 2 different kinds of slower ones. He rolls his fingers over the ball and the back of the hand. He's developed that back of the hand slower one, which is really good. And I feel ke in the power play at the death, he's been pretty good. Or then of course he's throwing himself around in the field and he can smash the ball at number 9. एक पिंच हिटर भी मिल जाता है आपको. फिलहाल तो शाहीन आ रहा है यार मेरी टीम में. मेरी टीम में भी आएगा तो सही. Even if they feel के सुपर 8 स्टेज तक शाहीन फिट होगा, they're gonna pick him. मुझे काफी हद तक ये यकीन है. अच्छा बेराम, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे तुम्हें बाबर और फखर में से एक पकड़ना पड़ेगा. जहाँ पे मुझे बाबर और फखर में से एक पकड़ना पड़ेगा. मैं दोनों नहीं डाल रहा हूँ अपनी टीम में अभी फिलहाल. एज इन फर्स्ट 15 में दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा. हाँ फर्स्ट 15 में एक ही आएगा. हम ये कई दफा बात कर चुके हैं कि यू कैन नॉट हैव साहिबजादा फरहान, बाबर आजम एंड फखर जमान इन द टीम, स्पेशली व्हेन यू गॉट सो मेनी अदर टॉप ऑर्डर बैटर्स. अब ट्रेड ऑफ बड़ा इंटरेस्टिंग है. Fakhar Zaman and Babar Azam have both, for the most part, been out of form, but Babar has at least scored 2 50s. एक 50 कैचअप नॉक था और एक 50 का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चेस में थी, जिता कर आया, फिनिशर कराया. Fakhar also scored 50 in the qualifier. 69 और 50 मारे थे. Look, जहाँ में एंड्रिस हूस ने 100 इन पता नहीं कितने मारे थे. मसला पता है कहाँ जाता है? Babar Azam is going to bat at 3 and I'm not in favor of that. I want Babar to open with Saibzada Farhan. If Babar opens, I want Fakhar to open with Saibzada Farhan and move Saim Ayub to. Saim should be first drop. Babar or Fakhar should open with Farhan, but Babar के साथ ये कभी करेंगे नहीं. They're looking at him as a first drop batter. It's the wrong approach because Babar, if he bats after the power play, especially if he comes in at like over number 5. ये दोनों होंगे squad में, just by the way. Pakistan होंगे दोनों. If he comes in to bat in over number 5 or 6, then he's going to get to play a lot of spin in the middle overs, and even if he doesn't get dismissed by spin in the middle overs, he's going to block and not being he's going to struggle when it comes to rotate strike, so he's going to get stuck versus spin. ये बहुत बड़ा issue है. और Babar Azam is not versatile. If he plays, he opens for me. Fakhar Zaman on the other hand is far more versatile than Babar Azam. Yes, middle order में भी खेल लेता. Spin को bash करना हो बीच में आगे वो कर सकता है. ओपन पे मैं वैसे फखर का शो नहीं हुआ. hasn't impressed me too much. That's his position and he hasn't been all too good for Desert Vipers. In fact, he's been Desert Vipers के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जब उसने ओपन किया, hasn't impressed in मसले तो हैं. In T20 eyes. He's had an underwhelming record in T20 eyes. और देखो, this is Fakhar Zaman's last World Cup. 100%. Even if he does well, it's probably his last World Cup. आगे बच्चे पड़े हुए माँ सदाकत वगैरह. 2027 ODI खेल लेगा बस. I know I might get slaughtered for this, but यार बाबर आजम के लिए भी kind of ये last chance है. I'll be real with you. 100%. बस अब यार अब नहीं तो कब. ठीक है. और you know
people say कि jokes on you if you're expecting Babar to strike at 150, 140 की उम्मीद तो रख सकते हो यार। अगर ओपन आए और शुरू में अपना काम कर जाए तो ठीक है। मुझे 140 की स्ट्राइक रेट पे दे दे ओपनर एज ओपनर रन्स, या चलो एट फर्स्ट ड्रॉप रन्स, आई विल टेक इट। एट फर्स्ट ड्रॉप मुझे डाउट्स हैं, क्योंकि थोड़ी इंश्योरेंस तो आपको मिल जाती है if he does well, बट दैट इंश्योरेंस देन अगेन पुट्स द बॉल इन द बॉलिंग अटैक कोर्ट कि अच्छा तुम लोग करो जरा अच्छी बॉलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली रन स्कोरिंग तो थोड़ी यार पेडेस्ट्रियन रहेगी फिर। देखो if he catches up then he catches up, वरना तो कैच अप नॉक आपको क्रिपल कर सकता है, it can handicap you. But if you're chasing 150, 160, he's probably the best guy to do that. I think Babar Azam फिर आता है। So we're going for Babar then? I'm going for Babar. going for Babar. फॉर्म दोनों की नहीं है। बाबर को ओपन नहीं कराएंगे ना सादी यार वो। नहीं, हम अपना स्क्वाड बना रहे हैं ब्रो, हम उनका स्क्वाड नहीं बना रहे। अपने स्क्वाड में मैं बाबर लेके जाऊं, डाल दे बाबर। I don't think there is a correct answer, but I do feel like Fakhar Zaman's versatility does add an extra layer over here. तुम अपना स्क्वाड सिलेक्ट करो ना, तुम्हें अगर नहीं चाहिए बाबर तुम फखर डाल, कोई इसमें मसला हम उस पॉइंट पे आ गए हैं सादी जहां पे सबको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाबर आजम और फखर दोनों पाकिस्तान के स्क्वाड में तो दोनों डाल दो। They're going to pick both. It's the wrong move, but they're going to do it. तुमने बाबर सिलेक्ट किया फिर अपने स्क्वाड में, क्योंकि मैं अपनी शीट पे अपना और तुम्हारा लिख रहा हूँ, तुम पाकिस्तान का तुम लिख रहे हो। अच्छा ये कर रहे हो यार। हाँ आई सपोज बाबर ही डाल दो। तुम बाबर ओवर फखर ले रहे हो। आई मीन फखर का इंजरी का मसला भी रहता है, उसकी फिटनेस का कंसर्न है। आई थिंक फिटनेस का कंसर्न नहीं है। आई थिंक इन श्रीलंका आई वुड स्टिल ट्रस्ट बाबर ओवर। दैट्स अनदर थिंग राइट, बिकॉज़ फखर हैजंट डन वेल इन श्रीलंका एट ऑल। हाँ, ही स्ट्रगल्ड देयर बिग टाइम। और स्लो सर्फेसेस पे फखर भी पैदल हो जाता है। हाँ, थोड़ी स्लो सर्फेसेस। बाबर कौन सा कुछ पट लेगा यार, लेकिन खड़ा रहेगा। बट देन अगेन अगर शुरू में थोड़ा सा अगर ओपन भेजे उसे, this might be a T20 World Cup in which anchor batters could be a thing. हाँ, might be. I don't know for sure. श्रीलंका लेग में तो हो सकता है यार। मुझे पता ही नहीं है श्रीलंका का। प्रेमदासा में चलो मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, अगेंस्ट इंडिया आपका एक मैच है ग्रुप स्टेज में, वहां पे शायद आपको इस तरह का हो। सिनेलीज का मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं तुम्हारा बिल्कुल ही पैदल हो, सोचो। मैं तुम्हारा दिमाग थोड़ा और झांगल कर लो। ड्यू आ गई तो सुबह 10:30 बजे कौन सी ड्यू आनी नहीं, मगर नाइट वाले मैचेस में आ सकती है। पाकिस्तान हैज अ कपल ऑफ दोस। पाकिस्तान इंडिया वाला there's one more. हाँ, there's one more night game. That's 50% of your group games. बाकी 2 जीत लो। वैसे this might be one of those weird tournaments क्योंकि हर ग्रुप के अंदर 5 teams है। Even if Pakistan drop another game apart from the India one, there could be a route to the Super 8s. फिर भी ड्यू आ गई तो क्या आ गई ब्रो। But due could really fuck things up for everyone. Yeah. And you know what? It is winter time. But then again, it's क्या कितने बजे? 6:30 बजे मैच स्टार्ट है यार। I don't think क्या श्रीलंका के वो 7 है। Damn. ठीक है, थोड़ा सा झांगल कर दिया ना तुमने। Damn. Yeah, ये एक हो सकता है मसला। We're not talking about the due and it could be a feature. It could be a feature. Yeah. बिल्कुल। Yeah. Yeah. But I'm still gonna pick Babar. I'll pick Babar as well. इस पॉइंट पे आकर ना there are no correct answers anyway. Is Maaz Sadakat an answer? अब नहीं। मैं गैम्बल ले लेता श्रीलंका सीरीज में उस पे। Thing is कि मुझे बस डर था कि ये ना हो कि they take a gamble on him, they gamble with Maaz Sadakat, he fails and then they completely shelf him. लेकिन मैं ले सकता था। You do not shelf someone like Maaz Sadakat. Once you bring him into the mix, once he starts playing for Pakistan, you give him that confidence, you give him that faith कि अब तूने अगले वर्ल्ड कप तक खेलना है। अगर तो ये हम श्रीलंका सीरीज का स्क्वाड बना रहे होते ना, जिसका बाय द वे पॉडकास्ट कल आएगा और भी बड़ी बातें करने उसके अंदर 2-3 और बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और फिर हम लाइव भी आएंगे श्रीलंका के तीनों मैचेस के लिए। श्रीलंका माता। अब मेरी बात सुनो, अगर तो हम श्रीलंका सीरीज का स्क्वाड सिलेक्ट कर रहे होते ना, तो मैं शायद माज सदाकत डाल। माज सादकेन ऑन द बीट। स्ट्राइक्स भी आगे नहीं बोल सकते। स्ट्राइक ही पड़ जानी है YouTube से। मैं इतना ही बोला, मैंने आगे कुछ नहीं बोला। I admit my defeat बस ठीक है। Now I'm down on my knees and bleeding. गाँव में जो बच्चे हैं भूखे, राउंड अबाउट पे वो मांगते हैं बीके। साउंड क्लाउड में गाने चढ़ाऊं। I'm down to be the clown on weekends. उनको छोड़ दें, आप मुझ पे हंस लें। आए दबा ले मुझे पाँव के नीचे। बॉबी आ गया जी हमारे स्क्वाड। बॉब्जी द किंग। आजा भाई। बॉब्स इन वजीन। अच्छा भाई, अच्छा इस पे वैसे नहीं पड़ेगी स्ट्राइक, लेकिन पड़नी चाहिए। मैं डालूंगा इस घटिया बड़े तुम फुल आदमी हो यार। बॉब्स इन वजीन मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा उस्मान खान कौन है कीपर? और यार आई एम अनश्योर। अनश्योर तो मैं भी हूं। आई फील लाइक ही इज प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। अच्छा मजे की बात ये
थोड़ा अरसा पहले ना, बिफोर द BBL स्टार्टेड, आई वाज टॉकिंग टू बैराम कि मैंने कहा यार अगर कीपिंग का ही बात है तो व्हाई डोंट यू पिक अ बेटर कीपर व्हिच इज मोहम्मद रिजवान. लेकिन भाई, आई एम सॉरी, मोहम्मद रिजवान इज ही इज अ लायबिलिटी, प्रॉपर लायबिलिटी फॉर द मेलबर्न रेनेगेड्स. अभी साया कॉप्स ने ग्राफिक लगाई थी, वेल मेड 41 of 38. I have some friends in Australia and they were pretty pissed at that 41. Yeah, it came off 38 balls. yes. No, रिजवान का तो दूर दूर तक कोई सीन ही नहीं है. नहीं आ सकता. रिजवान बाय द वे मेरी ओडी और टेस्ट टीम दोनों के अंदर है. मुझे पक्का. मुझे अब पता है डर क्या है मोहम्मद रिजवान के बारे में, और ये मैं बड़ा सीरियस हूँ क्योंकि यहाँ पे ना सेलेक्टर्स और ये सारे फॉर्मेट मिक्सिंग बहुत ज्यादा करते हैं. एंड once he loses, he's lost his place in the T20 side. Lost his place a while back. And he's not doing well in the BBL. I am fearful कि इसको ये ODI और टेस्ट से ना निकाल दें यार. ये इनका कोई पता नहीं है. टेस्ट से आप नहीं निकाल सकते. He's averaging 40 or close to 40. मैं तो कभी भी ना निकालूं, लेकिन मुझे डर है. मैं I'll be honest. ODIs में भी आपके पास रिजवान से बेहतर कीपर इस वक्त नहीं है. शायद आगे हो जाए, बट अब फिलहाल तो नहीं है. मसला है ना. मसला नहीं है, डर नहीं, मुझे नहीं इतना डर इस चीज मुझे. I feel like Hassan is a smart lad. He won't be that stupid. Plus Shino की टीम है, ODI टीम. 20 बंदों में रिजवान का नाम ही ना डालो, फिर क्या करेगा हसन? Shino won't do Rizwan dirty in ODI Hopefully cricket. not. He won't. उसका फॉर्मेट मिक्सिंग ना करना. बड़ा भाई है उसका यार. अच्छा, In fact, I think Rizwan brought Shino to Saya, or was it the other way around? I don't know. One of those things happened. अच्छा, उस्मान खान. दूसरा ऑप्शन नाफे. नाफे नहीं आ सकता ना भी क्यों यार. नहीं आ सकता? नहीं, अगर तुम चांस ले सकते थे मां सदाकत पे तो तुम नाफे को क्यों रूल आउट कर रहे हो अगर तो वो अच्छा कर जाता है? उस्मान खान hasn't done too well in international cricket, has he? I mean, he hasn't done all too well, but recently he has still. He's played more games for sure. He was kind of playing better than he played before. हाँ. ये था. Yeah. और प्लस स्पिन को टेक डाउन करना है. कर तो सकता है इन थियरी, तो स्पिन को टेक डाउन कर सकता है. और जब पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलता है पागल हो जाता है बंदा. कि इस तरह का होगा नहीं. बैराम पाकिस्तान करेगी नहीं है. देखो टॉप ऑर्डर में फिट नहीं हो रहा कीपर, तो I'd rather just go with उस्मान खान. नहीं, मैं यही एक तुम्हें केस प्रेजेंट करने लगा था. पाकिस्तान करेगी नहीं है, लेकिन इन हाइपोथेटिकल आइडियल वर्ल्ड, श्रीलंका वाली सीरीज आ रही है, श्रीलंका में खेल रहे हो, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है. वोंट यू प्ले ख्वाजा नाफे एंड उस्मान खान बोथ इन द सेम लाइनअप जस्ट टू ट्राई देम? I would, but they wouldn't. मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं ना, वो सारी बातें साइड पे रख. I don't think he's going to get a game ख्वाजा नाफे, but I hope he does. I think अगर आइडियल वर्ल्ड होता मैं दोनों को 3-3 गेम्स देता मिडिल ऑर्डर में खेलो. Look, if we go by what Azaz and Zaid Babar Khan and those boys have to say, then he's not a bad keeper. But I haven't seen him. I haven't seen him. तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? I feel यार उसरा तो सर्विसेबल कीपर तो उस्मान खान भी है, but he's serviceable. That's it. That's the extent of it. मसला पता है क्या है? मैं फिर उसी बात पे आऊंगा. इमर्जिंग एशिया कप में गाजी गौरी, आई लव यू, लेकिन उसकी जगह ख्वाजा नाफे आपका कीपर होना चाहिए था वहां पे. वहां पे टेस्ट करते हैं, वहां पे कुछ पता चलता है ना. अगर कुछ गलतियां कर भी देता बिहाइंड द सबसे, वो तो गाजी ने भी की हैं. गाजी ने बथेरी की है, बथेरों की है, लेकिन गाजी ने अभी कोई बेसबॉलिस्ट सेंचुरी मारी है ब्रो. Too close to fiddle with this, which is why I'm going with Usman Khan. I'm a bit torn on this. Usman / I'm torn Nafi. as well. Like I said, at this point onwards, there are no correct answers. 85% chances of Usman Khan getting into my team and 15% Nafi. That's what I'm giving. Haris has no chance of getting into your team? Haris is. I'm going to probably keep him as a reserve. Haris isn't getting in, bro. No, bro. अच्छा, प्रॉब्ली इनमें से एक रिजर्व आ जाएगा मेरा. अच्छा, मेरी बारी आ गई है. 14 पे आ गए हम. 13 बंदे हो गए. 14 और है कौन? बॉलर चाहिए तो बॉलर चाहिए. अच्छा हाँ, बॉलर तुम तो मुझे पता है किसको रखोगे, मैं उसको नहीं रख रहा. मैं जरूरी नहीं मैं इसको रखूं. नसीम शाह को ला रहा हूं मैं. इतना बड़ा तुमने यू टर्न मारा है. कल को मुझे कह रहा था कि I don't think Naseem gets on to that plane or to Sri Lanka. He's been really good for Desert Vipers. Yeah, in a final. That's in a space of 2-3 games. अच्छा, he's been really space good. of 2-3 games. देखो अगर तो शाहीन इंजर्ड होता and he's got that dog in him. He does have the dog in him. और स्पेशली जिस तरह यूज की है ना इसे थ्रू आउट डेजर्ट वाइपर्स ने, डेथ में बॉलिंग नहीं दी. पहले मुका रहे थे उसके ओवर्स 14-15 में 4 ओवर करवा लेता था, नहीं पड़ रही थी इसे. ही वाज रियली गुड विद द न्यू बॉल एज वेल. कल पावर प्ले में उसने उड़ा दिया. I'd pick Naseem. Thing is that if Shaheen isn't fit for this T20 World Cup, then you don't have many other options. You have to go with Naseem. But I'm happy for him that he's done well at Desert Vipers. There was a pretty long patch of mediocrity before that. There was. Lekin, form had dropped off. I see a fire in him, bro. I see fire inside the sea, Mo. I see fire. 3 for 18 and 4 in a final. Bro,
डॉग तो इसमें हमेशा से था. अब तो क्लियरली वाइपर भी है इसके अंदर. Then 1 for 20, 3 for 35, 2 for 12. These are great numbers, bro. वैसे डेजर्ट वाइपर्स ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में या बाकी दुनिया में कई जगहों पे नहीं लोगों को पता कि वाइपर सांप होता है. वो शायद वाइपर समझ पता होगा यार. क्या बात, रेत हटा रहे हो. क्या तुम्हारे में उस्मान खान था ना. असल में पाकिस्तान में लोगों को वी और डब्ल्यू में फर्क नहीं पता. अच्छा यार, वो वाइपर और वाइपर को कंफ्यूज कर देते हैं. क्या मतलब नहीं पता. That's a very common thing. I went abroad to study and I had that. I was saying village, not village. अब एक्सेंट का मसला होगा. Accent का मसला नहीं है. It's just a malfunction. It's not a malfunction, it's an accent issue, bro. It's not an accent issue. It's a pronunciation. अब देखो एक्सेंट जो है, V is with the lip. V. एक्सेंट जो है, Virat. एक्सेंट जो है, AKCENT वो बैंड भी है. Oh. नहीं ये तो वो है दूसरा वाला. ये है वो एक दो ही आए थे इस तरह के. ये दूसरा वाला है. एक्सेंट का था all the time I thought about you. Bro वो अभी भी यहाँ पे कर रहे हो. अभी भी कॉन्सर्ट हो रहे हैं उनके पास पेशावर में. और मुझे याद है यार हम लोग हाई स्कूल में रॉन्डेवू जाते थे F7 में. वहाँ पे बस यही लगा शीशा पीने. एक्सेंट के ही गाने लगते थे सिर्फ. That's my name, that's my name, that's my name. नॉर्वे में इतने पैसे नहीं कमाए उन लोगों ने जितने पाकिस्तान में कमाए. नॉर्वेजियन थे वो. नॉर्वेजियन थे पक्के. स्कैंडिनेवियन थे. हाँ थे. तो स्कैंडिनेविया में नॉर्वे नहीं आता है, लेकिन मुझे शक है कि वो स्वीडिश तो नहीं थे. स्वीडिश हाउस माफिया था. वो तो था ही था. वो फिट था. वो काश पाकिस्तान की टूर कर रहे होते. I've been to a concert स्वीडिश हाउस माफिया का. नाइस. मुझे बताओ नसीम तुम्हारी टीम में नहीं है. नसीम मेरी टीम में नहीं. कौन है? नसीम मेरी टीम में. कैन आई पुट अ स्लैश अलोंगसाइड शाहीन? डाल लो. क्योंकि नसीम मेरी टीम में तब है जब शीनो मेरी टीम में नहीं है. और वो सिर्फ तब होता है जब शीनो इंजर हो जाता है. लाइक बेसिकली इफ द इंजरी इज सीरियस एंड ही कैंट फीचर इन द T20 वर्ल्ड कप देन सीमो इज इन. शीनो इज आउट. हु इज योर 14th? मेरा तो नसीम है. तुम्हारा रऊफ है. मैं सोच रहा हूँ. ऑप्शंस है नहीं कोई. इतना सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास यार. असल में वो बाबर फखर वाली डिबेट मैं वहां पे भी स्लैश मार रहा हूं. वैसे पता है. हाँ चलो वहां पे भी तुमने टीम बड़ी सिलेक्ट कर ली है तुमने सारे. नहीं मैंने कहा है कि दोनों में से कोई एक ले लो और फिर मैं रोला नहीं डालूंगा. आई वोंट से कि ओ बाबर क्यों लिए फखर नहीं लिया या फखर क्यों लिए बाबर क्यों. लेकिन ये लेके तो दोनों जाएंगे. ये लोग के दोनों जाएंगे. मैं एक को रखूं बस. मैं ये कह रहा हूं आई डोंट वांट टू पिक वन बिटवीन दोस टू. वैसे हम अगर अपना स्क्वाड बना रहे थे तो हम तो अब्बास अफरीदी भी रख सकते थे. अब्बास अफरीदी डालता मैं पक्का डालता. तो डाल लो. वो नहीं जाएगा ना. तो जाएगा का पॉइंट ही नहीं. अपना स्क्वाड बना रहे हो. आई थिंक राणा फहीम इतने इंडिस्पेंसिबल हुए. अगर वो इंजर हो जाते हैं उनका बैकअप चाहिए. मुझे बताओ बहराम वाले कॉलम में और पाकिस्तान वाले कॉलम में डिफरेंस क्या है? तुम्हारे थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस क्या है? पता नहीं इस वक्त. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. बहराम वाला कॉलम वो होगा ना कि मेरा क्या स्क्वाड होगा. इसमें फखर और बाबर दोनों हैं. इसमें एक है. ये डिफरेंस तो है. नहीं तुम अपनी टीम किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो ये बता दो. अगर मैं पूरी अपनी टीम बेसिस पे सिलेक्ट करती तो कजन सैल करो. बात तो फिर वहां आती है सारी. थोड़ा तो रियलिज्म रखना है इसके अंदर. चलो ठीक है. ओके एग्रीड. उस पे आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा. यार आई वांट बैकअप्स राइट. आई डोंट वांट भाई अपना या नसीम शाह मैंने सिलेक्ट किया. आई थिंक slowly and gradually he's been good. He's been doing better. Final में बहुत अच्छी performance थी. He's got that. I can see it in his eyes. He's up for it. I'm going to put a slash alongside Vaz Jr. and Haris Rauf as well. I'm sorry. क्योंकि वो मैंने पहले ही डाला हुआ था तुम्हारा. चक्कर पता है क्या है? मैं उन दोनों में से भी एक लेकर जाऊं. Vaz Jr. और Haris Rauf में से कौन सा लेके जाऊं ये बताना है ना. I wouldn't be too sad if they pick Haris Rauf over Vaz Jr. Although I get your point. मैं तुम्हारे पॉइंट से इख्तलाफ नहीं कर रहा. मगर आई वोंट बी लाइक पिस्ड ऑफ. आई नो. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक तो पाकिस्तान वाला स्क्वाड तो हम बता देंगे ना कि पाकिस्तान ये लेके जाएगा हमारे अकॉर्डिंगली. फक इट. आई एम पिकिंग अब्बास अफरीदी. चलो अब्बास अफरीदी पिक कर लो. क्योंकि मैं चाहूंगा कि राणा जी के लिए बैकअप हो. एंड अब्बास अफरीदी कुड इवन स्टार्ट अहेड ऑफ राणा फहीम एट टाइम्स बिकॉज लुक अगेन दिस माइट बी रेपुटेशन बट प्रोफाइल की बात करते हैं. स्किल सेट की बात करते हैं. Someone who is really good in the middle overs and at the death, or through the middle overs and at the death. His back of the hand slower one is his main weapon, and his change of pace is ridiculously good. He used to go for plenty of runs and take wickets in recent times. Yeah, before he got dropped,
he was not even going for a lot of runs and still taking wickets. I don't know why they just shelved him. क्योंकि this was the guy जिसके ऊपर आप like you could have built your core around. You could have. ठीक है, he can smash the ball really well down the ground and off the pull, and he's also an elite fielder. He's also multifaceted. He's everything that Hassan should like or want. मगर वो बेचारा हांगकांग सिक्सेस खेल रहा है. I don't understand. I don't know वो हांगकांग सिक्सेस के लिए क्यों आपने earmark किया हुआ था बास अफरीदी को. So I would keep him in. Okay. Yeah. अब मैं जब फाइनल कर लेंगे ना हम, तो तुमने ये जो चॉइसेस लिखी हुई ना, आइदर वैज जूनियर और रऊफ, तुमने एक पिक करना होगा हाँ. उसमें से, ठीक है. 14 मैंने नसीम किया, तुमने अब्बास अफरीदी किया. 15 पे आ जाओ ब्रो. मैं ही कर रहा हूँ. हाँ, सूफी मैक. बैटर्स की किल्लत नहीं है हमारी टीम. बैटर्स की किल्लत तो है, मगर कौन है और बैटर? फिर तुम भी उनकी तरह बाबर फखर दोनों रखो, या तुम लो टेक अ पंट ऑन माज सदाकत. देन अगर मैं अपनी बना रहा होता तो मैं ना रख सकता, इस वक्त ना रख सकता, मैं पहले मुझे बस डर है ना कि he shits the bed in the World Cup, they bench him forever. हसन नवाज, अब्दुल समद अभी स्क्वाड में. हसन नवाज has won the ILT20, but Desert Vipers के लिए उतनी contribution नहीं है. एक मैच में. Look, we know that Hasan Nawaz has fallen out of favor and maybe अभी उसकी जगह नहीं बन रही, but I would love to see him feature in the future. Thing is, he did really well in the PSL. He was smashing spin in the middle overs and was also taking down, fast bowlers as long as the ball is not new. मुझे पसंद आ रहा था हसन नवाज, but they completely killed his confidence as well. And कुछ हसन नवाज की भी इसमें obviously गलतियां हैं. Thing is कि अब यहाँ आकर नहीं कर सकते उसको पिक, क्योंकि हमें पता है कि होगा भी नहीं, और ऊपर से कुछ डिटेल्स पता है ना हमें, जो हम ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकते. या रिवील तो नहीं करेंगे, बट लेट्स जस्ट से कि हसन नवाज की भी कुछ गलतियां हैं. उस वजह से आई वोंट बी टू कीन ऑन पिकिंग हिम. Look, he has been playing with Pakistan players for Desert Vipers. Maybe they can put in a good word. I don't know. जाना तो उसको चाहिए असूली तौर पे. I feel like जगह तो उसकी बन रही है यार बन तो रही है. अब इन्होंने अब्दुल समद को पिक किया स्क्वाड में, ठीक है. अब्दुल समद काफी अरसे से स्क्वाड में. अब्दुल समद, इरफान नियाजी टाइप प्लेयर्स तब चलते हैं जब 6-7 पे आपके और लोग ना हो. He hasn't gotten a game अभी तक. शायद एक आधी बहुत पहले खेला था. अब मुझे समझ नहीं आ रही उस पे, अगर उन्होंने इस 15 का या जितने भी 15-16 जितने भी हैं श्रीलंका सीरीज के लिए, उसके अंदर इसे रखा और हसन नवाज को नहीं रखा, तो फिर क्या थॉट प्रोसेस किया उसके पीछे, क्योंकि उसने गेम तो खेली नहीं यार. पता चक्कर क्या है, 6 पे नवाज है, बल्कि अब तो 6 पे 6 पे शादाब है, 6 पे शादाब है, 7 पे नवाज है, 8 पे राना फहूम है. अब्दुल समद इज अ फिनिशर, ही डजंट गेट इनटू दिस टीम. यार मुझे बैटर चाहिए ब्रो. हसन नवाज डालो, फिर क्या कर सकते हो, या फिर बाबर फखर दोनों के साथ जाओ. नहीं, वो बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बैटर्स हो जाएंगे. Can't do that. Originally तो हसन नवाज भी टॉप ऑर्डर बैटर ही है. ओरिजिनली तो है, मगर फिलहाल तो he had carved his place और out. माज के साथ मैं जा नहीं सकता. एक और टॉप बैटर है और टॉप ऑर्डर बैटर है, और अब I can't take a punt on him right now. अगर श्रीलंका सीरीज में होता ना, तो फिर जा सूफी के साथ. स्पिनर भरे हुए भाई. तुमने सूफी मैक्स स्लैश अब्रार की है ना. हाँ. I'll probably pick Su. I don't know what I'll do. Abbas Afridi is a great option, लेकिन पेसर बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर. मैं स्टार्टिंग 11 में रहा हूँ इसमें. 5 पेसर तो लेके जाएंगे. मेरी परफेक्ट 11 के अंदर बाबर स्लैश फखर में से एक बंदा ओपन्स विद साहिबजादा फरहान, देन साइम अयूब, देन उस्मान खान, देन कजन सैल, शादाब खान, नवाज फहूम, 8 हो गए. और फिर शाहीन स्लैश नसीम, सलमान मिर्जा 10, या तो उस्मान तारिक ऑब्वियसली सलमान मिर्जा की जगह, और फिर आखिरी में अबरार को बैकअप दे दूं फिर सूफी मैक का. 3 स्पिनर. फिर यार बैटिंग कम ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है. इंजर हो गया तो रिप्लेसमेंट आ जाएगी. एक बैटर तो चाहिए ना. Wouldn't you rather have more options with the ball? I'd rather have one backup batter. One. Yeah, you're not wrong over there. One. एक बैटर भी नहीं है. Yeah. नहीं है. I'd take a punt on Hasan Nawaz then, bro. I don't want to take a punt on him. यार मसला पता क्या है? When you have fallen out of favor, you have to kind of earn your respect back, and there's not enough time to do that. फखर है फिर. फखर नहीं है. You've got to basically stake your claim all over again, and there's very limited time. Plus, he's not going to Sri Lanka, Sadi. Yeah, he's not तो going to. क्या फायदा है? There's no point picking him. फखर डाल लो फिर. क्या करें यार? Screw it, man. I'm going to pick Maaz Sadakat. मास पिक कर लिया. मगर अगर अपनी ही टीम बना रहे हैं तो फिर मैं भी करूंगा. माज मुझे तो पसंद है. Obviously, you guys know where I stand on this. Once he is integrated, you do not chuck him out. You stick with him, and he is going to be, or he has to be, penciled in as a core player for the 2028 T20 World Cup. ये जुल्म मत करना उसके साथ जो आपने मोहम्मद हारिस का पहले किया था. ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए. But Maaz could be a trump card, man.
अब अपने है तो मल्टीफैसेटेड अब प्लेयर, अपने उस पे ही आ गए हैं तो मारता भी है ना सादी, नहीं, बड़ा कूटता है। मां सदाकत तो 100%। अच्छा, मैं अबरार स्लैश सूफी भी कर रहा हूँ। मैं सूफी लेके जा, अगर मेरी टीम हो मैं सूफी लेके जा रहा हूँ। थिंग इज कि मैं बैकअप पे अबरार है। उस्मान तारिक इज रियली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स फॉर सुफियान उस्मान मुकीम। तारिक तो खेलेगा। हाँ मतलब अगर मैं अब्बास अफरीदी की जगह सूफी ले जाऊं यहाँ पे तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी सादी। हाँ कर सकते हो तुम। या अब अब्बास अफरीदी स्लैश सूफी कर देता हूँ मैं, ये कर लेते हैं। स्लैश फ्लैश अभी हटेंगे सारे बेना, मैं बता रहा हूँ पहले। क्यों हटा रहे हो? हटाने है ना 15 बताओ अपने। क्या सिलेक्टर्स के पास ये होता है कि ये ले लो या ये ले लो? अच्छा ये लोग क्या करेंगे, इनकी भी तो टीम बनानी है। तुम सिलेक्टर हो। ये लोग किसको लेकर जाएंगे? क्या है अभी उस्मान खान है एक इनका जगह रहती है, बाबर फखर दोनों हैं उनके। हाँ फिर भी एक जगह रहती है। ये लेके जाएंगे ये लेके जाएंगे नसीम को? नहीं, नहीं, ये लेके जाएंगे अब्दुल समद को। ये लेके जाएंगे अब्दुल समद को, मुझे पता है, आई नो इट इन माई बोन्स। या हसन नवाज को तो नहीं लेकर जाएंगे यार, पता है। हाँ श्योर, डाल दो अब्दुल समद, फिर बनता नहीं है। नहीं बनता। अच्छा रिजर्व्स में एक मेरा रिजर्व मोहम्मद हारिस है, एक मेरा रिजर्व अबरार अहमद है, ठीक है। अच्छा, और एक मेरा रिजर्व तुम कर लो सूफी स्लैश अब्बास अफरीदी। मेरा एक रिजर्व ख्वाजा नाफे है, मेरा एक रिजर्व फखर स्लैश बाबर है, और मेरा एक रिजर्व फखर है। यार सादी, व्हाई डू आई हैव टू पिक वन व्हेन आई एम सेइंग कि दोनों में से कोई भी ले ले तो मुझे मसला नहीं होगा? बिकॉज यू रिप्लेसिंग द चीफ सिलेक्टर। गॉड डैम, पॉइंट, इस एक्सरसाइज का पॉइंट है ये। इनके रिजर्व्स कौन है? नहीं होंगे, इनके रिजर्व्स ही नहीं है। नहीं सूफी होगा, हाँ सूफी होगा। सूफी होगा। नसीम अगर नहीं डाला, नसीम नसीम स्क्वाड में होगा, पता है मेरा। मैं कह रहा हूँ नसीम समद की जगह होगा। हाँ कर दो। हाँ नसीम और समद को रिप्लेस कर रहा हूँ, समद ये रिजर्व ले जाएंगे और 2 ही रिजर्व अनाउंस करेंगे। हाँ, और तीसरा रिजर्व इनका कौन बन सकता है? नाफे होगा प्रॉब्ली। मैट डैनी होगा रिजर्व इनका। मैं नहीं आ सकता यार मैट डैनी बेचारा खेला तो ठीक ही था। नहीं अभी नहीं आ सकता, ही इज गुड। श्रीलंका सीरीज में होना। मे बी दे विल नेम हसन नवाज एज अ रिजर्व मैन, मे बी दे डोंट वांट टू लाइक, अगर तो वो पिछली स्क्वाड में सिलेक्ट हो गया था ट्राई सीरीज वाली, तो शायद उसको रिजर्व कर दें यहाँ पे। अच्छा तुम्हारे रिजर्व्स क्या हैं? मेरे रिजर्व्स हैं फखर स्लैश बाबर, अब्बास स्लैश सूफी, ओके, और मोहम्मद हारिस। एक कीपर तो रखना है ना रिजर्व में यार। मैंने तो नाफे रख लिया। तुमने नाफे रख ली है? हारिस, अब्बास स्लैश सूफी। अच्छा बेराम, अब तुम्हारे लिए टफ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी स्क्वाड को सॉर्ट आउट कर लिया है, तो तुम स्लैशेस हटा के अपनी स्क्वाड कर अब तुम फखर तुम फिगर आउट करो कि कौन से तुम लेके जाओगे ब्रो। तुम पहले अपनी बताओ स्क्वाड। कंसल ओके, कैप्टन, मतलब क्या करें अब। साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, राणा फहूम, शादाब खान, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, सुफियान मुकीम। अच्छा अबरार ही कट दिए। वसीम जूनियर, शीनो। अगर शीनो नहीं हुआ ना अवेलेबल तो फिर मसले पड़ जाएंगे मुझे, क्योंकि मेरे पास रिजर्व्स में कोई पेसर नहीं है। अच्छा शाहीन, बाबर आजम, उस्मान खान विकेट कीपर, नसीम शाह एंड मास सदाकत। रिजर्व्स है मेरे अबरार अहमद, ख्वाजा नाफे एंड फखर जमान। ओके ना सो कजन सैल से शुरू करते हैं। डालना पड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं? प्लीज कजन सैल, प्लीज ऐसी परफॉर्मेंस दिखाओ कि हम आकर अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह हमने हम्बल पाए खाए ना नवाज पे, मगर नवाज का पता था ना कि करने को तो कर सकता है वो। नहीं, करने को तो कजन सैल भी कर सकते हैं, देखा तो है हमने न्यूजीलैंड में ब्रो। 3 पे खेल रहा था। खिला दो नहीं ना, कैसे कैसे? अच्छा स्क्वाड बताओ। कजन सैल, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, राणा फहूम, शादाब खान, साहिबजादा फरहान जी सर, सलमान मिर्जा जी सर, उस्मान तारिक, यस, अबरार अहमद। अब वसीम जूनियर या हारिस रऊफ, जल्दी बताओ। हारिस रऊफ हो। शाहीन शाह अफरीदी स्लैश नसीम, वो तो स्लैश रहने दो। हाँ वो स्लैश रहने दो क्योंकि मुझे फिटनेस का नहीं पता शीनो की। बाबर आजम हो गया, बट आई वुड प्ले हिम ओपनर ऑब्वियसली, तो मैं तो उसका खिलाता, बट मैं भी। उस्मान खान, I'm going with Sufi Mac in the squad. Yeah, I'm taking 3 spinners and Maaz Sadakat to kill things off. बल्कि Maaz Sadakat भी नहीं, Abbas Afridi, Sufi Mac and Abbas Afridi. I'm going with a batter short because I feel like ये जो बैटर हैं यही खेलेंगे पूरा टूर्नामेंट, आप सैक तो कर नहीं सकते किसी को। My reserves are Mohammad Haris and Maaz Sadakat along with Fakhar Zaman. Okay, done. सही है। Yep. ठीक हो गया। That exercise is complete. It was kind of nerve-wracking. It is. I don't think I've ever struggled with a squad this much before.
there are a lot of options, लेकिन they're not too many quality अब options. अगेन 18 लोगों की स्क्वाड होती तो ये 2 सेकंड का पॉडकास्ट होता। हाँ, मजा कोई टेंशन ही नहीं थी। हाँ। फखर बाबर दोनों जाते, माज भी डाल देते, मो हारिस भी डाल देते, सब चले जाते। खैर, तुम्हारे रिजर्व्स कौन थे? मेरे रिजर्व्स अब्रार अहमद, ख्वाजा नाफे एंड फखर जमान। अच्छा, अगर तो शाहीन Oh, by the way, Pakistan will not keep another keeper in their reserves because they're going to keep with Saibzada Farhan if things don't go or things go awry with Usman Khan. अच्छा, मैं अपने स्क्वाड में भी एक स्लैश डाल रहा हूँ ना शाहीन, क्योंकि हाँ वो तो तुम्हें डालना पड़ना ना। शाहीन अगर ना हुआ तो नसीम आ जाएगा उसकी जगह, एंड आई विल प्रोबब्ली बम्प अप अब्रार। हाँ, अब्रार को डाल ही दो तुम यार। अब्रार के साथ पता है, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। ज्यादा आपके दिमाग में ना हलचल पैदा होती है व्हेन यू थिंक ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ उस्मान तारिक एंड सूफी मैक। बट अब्रार बेचारे को किस बेसिस पे निकालोगे? सूफी मैक किस बेसिस पे निकला? ये भी बात ठीक है। मेरा थॉट सीनियरिटी पे है ना। मेरा रैशनल स्क्वाड का ये था कि इन एन आइडियल वर्ल्ड इफ आई वाज सेलेक्टेड आई वुड हैव टेकन अ पंट ऑन दीस 18 गाइस। या इस ऑर्डर में आई थिंक 18 वाइज तो हम लोग काफी सिमिलर है। You've got Mohammad Haris and Abbas Afridi in there. I have Khwaja Nafe and I don't know, one extra player. Yeah, some other extra player you've got in there. Yeah, difference. हाँ, आप भी बताओ यार, we'd love to hear from you guys. Who do you think picked the better team over here, Saad or myself? And what do you think Pakistan will pick? अपनी भी favorite जो है ना, favorite नहीं, pick your 15. Pick your 15 plus 3 reserves. Plus 3 reserves. Tell us what that 18-man squad is in the comments. So, दो exercises हैं, एक ही comment में पहले अपनी टीम बतानी है, this is what I would pick, and this is what Pakistan will most likely pick. Yeah, and then you can also tell us के साथ ने बेहतर किया ये नौकरी के मैंने बेहतर किया। और गालियां दिए बगैर, वैसे जितना मर्जी criticize करना है। Also यार पता है, selection is an interesting thing in general because 12 लोग सबके सेम ही होते हैं। 3 लोगों पे आकर फिर सबकी इख्तलाफात आते हैं। इसमें भी हमारे 13 और आई थिंक नहीं 12 हमारे सेम है, 3 डिफरेंट है 15 मैन। तुमने तैयब ताहिर को कैसे नहीं डाला? आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करते, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे। कामी जी एनीवन? कामी जी किधर है? गायब। या जो भी मैं कह रहा था यार, बूथियां पसंद आई हो तो Spotify, Amazon Music, Apple Podcast वहां सुन सकते हैं। जानिए ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। 1500 पर मंथ पे बना देंगे। उसके अलावा ये ब्यूटीफुल पोस्टर्स बताओ उनको। if you want Shaheen to get fit and lift that T20 World Cup trophy, दोनों पोस्टर लेने पड़ेंगे। बाबर आजम हाईएस्ट रन स्कोरर एंड लिफ्टिंग दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो वाला पोस्टर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे तो पोस्टर्स जो मेरे पीछे आप वैसे ही ले लो यार, वैसे ही लेने हैं, कोई इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है। नोमी पॉइंट का खूबसूरत तरीन ट्रक आर्ट वाला पोस्टर, मैन मिथ पॉइंट सुप्रीमेसी, उसके साथ इम्मी के ब्रिलियंट पोस्टर ऑफ हिज एज वेल, वो दोनों तो मैंने भी खरीद लिए, नोमी पॉइंट इमरान खान वाले। एंड देन देयर स्पेस यार, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, इम्मी के, वैज, वैकार, शेबी, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइज ऑन योर वॉल? तो यार चलो खरीदो पोस्टर, जानी बनो, और इट्स गोइंग टू बी प्रीटी बिजी हियर ऑन। हर रोज का पॉडकास्ट आने लगा। So कल आएगा आपके पास प्रीव्यू of Pakistan and then there's some other stuff that needs to be discussed. Then the live watch alongs throughout the JoJo series है यार। Okay, bye. Yeah, चलो bye bye. Boy, कैसा